Okay, so I am going to get started with the tenses that we took last week as well, and I'm going to take two tenses one more. And it is very important for you to understand that this tenses that I'm going to take today is going to be followed by an examination that you're not going to give today, but there are topics that I'm going to give, and the examination of these topics will be conducted during the weekend. So I strongly recommend that you give 100% attention to what I am teaching. And as always, I want you people to have notebook and pencil in front of you so that you can jot the points in case if you believe that they are important to you. Now I'm going to take tenses today, and as you all know that there are 12 types of tenses. We have got 4 types of past tenses, 4 types of present tenses, and 4 types of future tenses. And I also told you before that all these tenses are not going to be utilized in IELTS. The tenses that are going to be utilized in IELTS are all 4 types of past tenses, all 4 types of present tenses, and in future you are only going to utilize simple future and future continuous. You might not want to spend your time or waste your time rather learning future perfect continuous. अगर आप सीखते हो तो problem नहीं है, but according to my experience they are not going to be that much in use, so don't worry about that part. Okay, now the other important thing that I would like to tell you is that this is a chart that I told you to take a screenshot before also. If you want to have a revision of tenses before your examination, before you appear for the IELTS examination, इसका आप screenshot ले लोगे तो आपको exactly idea आ जाएगा किसको कौन सा tense बोला जाए. So you can take a screenshot. If somebody has not taken the screenshot, they can take the screenshot. Anyhow, this lecture is getting recorded, so in case you want to take the screenshot tomorrow, because this lecture is going to be uploaded on the YouTube and the link will be shared to you, they can take it tomorrow as well. Okay, now I'm going to take simple past tense today, and you might think that simple past tense है तो सर बिल्कुल simple ही होगा. ऐसा नहीं है. Now what exactly is simple past tense? It is the tense that indicates an action that took place before the present moment. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो प्रेजेंट मोमेंट है, उसके पहले कोई इंसिडेंट हुआ है, एक्शन हुई है, उसके लिए हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट हैज नो रियल कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टाइम में उसका कोई कनेक्शन नहीं है. सो इट इज बेसिकली इंडिकेटिंग एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर द प्रेजेंट मोमेंट. आज की तारीख में अभी मैं जो करा रहा हूँ उसके पहले जो होता है उसके लिए जो अगर मैं कोई टेंस का इस्तेमाल करता हूँ, that is what we call as a past tense. So past simple means, or simple past tense means completed actions in past. Let me share an examples with you. I played basketball with my friends last Sunday. The bold words are the past tenses. Played basketball with my friends last Sunday मतलब पहले last Sunday में basketball में खेल चुका हूँ. आज की तारीख में उसका कोई मेरे साथ लेना देना नहीं है क्योंकि वो इवेंट खत्म हो चुका है. माहिर gave us a present for our wedding anniversary. Gave दे चुका है. We received the package this evening. Evening में मेरे पास पैकेज रिसीव हो चुका है. That event has been completed. My father built this house in 1970. 1970 में मेरे पिताजी ने वो घर बना दिया है. Built is a past tense. वो इवेंट पास्ट में खत्म हो गई है. Ethan lived in Italy for 8 years. Lived मतलब वो रह चुका है, अभी नहीं रह रहा है, वो 8 साल तक वो इटली में रहा है. So right now he is not staying in Italy. He lived in Italy for 8 years. So past tense का मतलब something that happened in the past and has got no connection in the present. Okay. Now sir past tense को कैसे बनाया जाए? So I'm not going to go into much more detail, but all I can say is अगर कोई वर्ड है जिसका एंड ई से नहीं होता, ई के अलावा कोई भी अलग वर्ड से होता है, जैसे कि कफ है, यू कैन मेक पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी. डोंट ट्राई टू गो इसको देखने की जरूरत नहीं. आई डोंट वांट यू टू गो थ्रू दिस बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ. आई ओनली वांट यू टू गो थ्रू दिस प्रेजेंट एंड पास्ट. सो आई रिपीट, एनी वर्ड विच इज नॉट एंडिंग विथ ई, अगर उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है आपको तो पीछे ईडी लगाना पड़ेगा. लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें ऑलरेडी ई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ डी लगाना है. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ पास्ट टेंस ऑफ एनी वर्ड ऑफ इंग्लिश. So this is how the past tense can be made. Now there are words in English
विच आर वेरी डिफिकल्ट टू मेक, और जिसके पास्ट टेंस में ये नियम लागू नहीं पड़ता। जैसे कि कफ का हमने बताया था कि भाई एच है, दैट मीन्स इट इज नॉट ई, तो इसके पीछे पास्ट टेंस लगाने के लिए ईडी लगाना पड़ेगा। जैसे कि दूसरा वर्ड है डांस, लेकिन उसमें ई है तो हमने सिर्फ डी लगा दिया, ई ऑलरेडी है तो डी लगा दिया। बट when you look at this words, arise है तो देखो इसमें ये काम नहीं करता। Now again I want you people to go through this, इसको ही देखो सिर्फ आप। I want you people to go through this। arise है तो arose हो जाता है, then awake है तो awoke हो जाता है, be का was, am are is are का were, become becomes became, and begin becomes began। इसको हम कहेंगे irregular verbs। what are we going to call this as irregular verbs, जिसमें जो ऊपर का जो नियम है ed वाला या d वाला is not going to be applicable, and this is where majority of the students commit mistakes। I am going to give you tomorrow a list of common irregular verbs which are utilized in IELTS, and I have seen students making mammoth mistakes, huge mistakes in that। इससे कारण आपका बैंड जो है 5.5 से आगे नहीं बढ़ेगा। पास्ट टेंस की मिस्टेक तो पहली मिस्टेक है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ सेंटेंसेस, द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस। So all you need to make sure, is to make sure, all you need to do is to make sure that you don't commit mistakes in past tenses। ये बहुत important है। Okay, मैंने बताया वैसा, I am going to give the list of words which are going to be there, which I am going to give you tomorrow, which are irregular verbs, और वो आप IELTS में इस्तेमाल कर सकते हो और करना पड़ेगा। Now this is, जैसे कि और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, give बन जाता है give, फॉर एग्जांपल build बन जाता है build, come बन जाता है came, eat का ate, and go का went। Now you might wonder कि सर पास्ट टेंस का इतना महत्व क्या है? पास्ट टेंस का बहुत महत्व है। In IELTS speaking, let me tell you, according to my experience, majority of the topics, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स जो है वो पास्ट टेंसेस के है। Now let us try to find out how much you know about irregular verbs। मैं आपको एक छोटी सी टेस्ट देता हूं। Now these are 17 words। I want you people to give me the past tense of this, and then you are going to check this out, and then you are going to check this out। हाँ, पीछे करेंगे या जल्दी 2 मिनट। फॉर एग्जाम्पल somebody wanted to have the slide of this। Yeah, this is, you can take the screenshot of this। Okay, fine। Now I want you people to have a small test। let us see how many of you get all correct। ये जो है वो irregular verbs है, जहां पे वो ed और d वाला कंसेप्ट नहीं काम लगेगा। These are 17 words। I am going to give you 3 minutes, or rather 2 or 3 minutes। I want you people to write only the past tense of these words। Your time starts now, and then I'm going to give you the answer, and you are going to then tell me how many of you got all correct, or how many of you got correct, how many correct। Chaliye, your time starts now। Write the simple past tense of these words। 3 minutes from now। One more minute। Let me know when you are done। Okay, Madhu, 10 minute, sorry, 1 minute। It appears that many of you, no, you don't need to write your answers in chat। There is no need for you to write answers in chat।
You can check yourself and let me know very honestly how many of this 17 words you got the answers to be right. This is very important. Okay, I hope this is done, students. I hope this is done, and I want you people to be absolutely honest to me and let me know how many of you have got the correct. I mean, how many of you got the number of correct answers. Now, these are the answers. Now, I want you people to check through it. Just go through this. मुझे बताइए अब इसका, आप मुझे बताएंगे कि इसके आंसर्स कितने सही पड़े आपके. चेक इट आउट. Very honestly, out of 17, how many of you have got each correct, or how many of you got, how many correct? Let me know. Okay, I'm getting a lot of messages from you. Okay, Noman has got all correct. Very good. I can see the answer from you people. Many of you got 10 correct, 12 correct. Only one student, Noman, has got all correct. Except that I could see the scores vicinity from 11, 12, 13, 14, 15, 16 के तकरीबन scores आ रहे हैं मेरे सामने. I can see the scores. Now you might be wondering, yes, I can see a lot of scores coming. Thanks for participating in this. Now over here I am now going to put a question, because I have been the examiner of IELTS. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है. फॉर एग्जांपल सर, इसका कोई टेक्निक है? बीट का बीट ही होता है, बिकम का बिकेम हो जाता है, बिगिन का बिगिन. ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे. देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दिस. सर इसका कोई टेक्निक? भाई इसका टेक्निक तो जिसने इंग्लिश बनाया है उसके पास भी नहीं है. सो आई वांट यू पीपल, I am going to give you this PDF tomorrow. I am going to share this PDF of irregular past tenses tomorrow, and you are going to memorize this. और आप मुझे बाद में याद रखोगे कि ये चीज आपको कितनी काम लगती है इवन व्हेन यू आर राइटिंग एन एसे. सॉरी, नंबर 1. दूसरा, राइटिंग टास्क 1 में इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यस, आई कैन सी. थैंक यू जिगर. राइटिंग टास्क 1 में फॉर दोस स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर एकेडमिक मॉड्यूल, जिसमें ग्राफ डिस्क्राइब करना पड़ता है, पाई चार्ट डिस्क्राइब करना पड़ता है. यू नीड टू डिस्क्राइब अ टेबल जिसमें ईयर्स पीछे के दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल द ईयर्स आर बिफोर 2021. यू नीड टू यूटिलाइज पास्ट टेंस. बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पीकिंग में तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. इन स्पीकिंग, एज आई हैव टोल्ड यू, ऑलमोस्ट 70 to 80% टॉपिक्स ऑफ IELTS आर ऑफ पास्ट टेंसेस. And when I take your speaking, I always notice that you people make tremendous mistakes in past tenses. ये मिस्टेक ऐसी है जो सीधी निकल के आती है और आपको 5.5-6 से ज्यादा नहीं मिलेंगे बैंड्स. So I strongly recommend you students that you need to practice a lot on past tenses and try to memorize those irregular past tenses जो यहाँ पे दिए गए हैं. ओके सर, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? मैंने पहले भी बताया था कि दिस इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड in very much in your IELTS speaking. दूसरा, पहला एग्जांपल, डिस्क्राइब अ रोड एक्सीडेंट यू सॉ. पास्ट टेंस का टॉपिक है. आपको सारी की सारी चीजें, वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब दिस टॉपिक आफ्टरवर्ड्स, बट ये का सारा टॉपिक है, इज अबाउट पास्ट टेंस. Describe a new activity you did in your childhood. Now this is not you are doing right now, nahi hai, you did in your childhood. So this topic is also about past tense. सारे के सारे verbs past tense ही लगाओगे. बहुत कम words ऐसे होंगे जहां पे आपको past continuous या past perfect का इस्तेमाल करना पड़ेगा, but majority of the verbs are going to be utilized in past tense. Describe about a day you won a contest. अगेन, आपने जो पहले कॉन्टेस्ट विन किया था उसके बारे में बोलना है, तो यू आर सपोज टू यूटिलाइज ओनली पास्ट टेंस. डिस्क्राइब अ हिस्टोरिकल प्लेस यू विजिटेड रेगुलरली, विजिटेड रिसेंटली. तो फॉर एग्जांपल देखिए, आप मैंने जो बोल वर्ड्स किए हैं वो सारे के सारे पास्ट टेंसेस है. सिर्फ सो मेस्मराइजिंग है वही पास्ट कंटिन्यूअस है. लास्ट मंथ आई विजिटेड आगरा सिटी टू सी ताजमहल along with my family and friends. It was so mesmerizing, अद्भुत था, that I felt, past tense, like being on top of the world, watching that historical monument. In my childhood days, I had only heard long tales about its beauty, but when I saw past tense, it with my own eyes, it was then only that I realized its importance. Can you realize, my dear students, the importance of past tense and the usage of past tense? Yes or no?
आपको पता चल रहा है, मैं अपने दिमाग से इसलिए बोल रहा हूं आपको कि आपको पता चले कि पास्ट टेंस का महत्व कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर बच्चे पास्ट टेंसेस के बारे में ही गलतियां करते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इंप्रूव योर पास्ट टेंस। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एंड हियर आई एम आल्सो गोइंग टू टेल यू दैट हाउ यू कैन इफेक्टिवली यूटिलाइज पास्ट टेंस। जैसे कि टॉपिक है डिस्क्राइब एन एक्सीडेंट यू सॉ, यहाँ पे आई एम आल्सो गोइंग टू गिव यू the vocab or meaning of important words or vocab that have been utilized. Describe an accident you saw. A very common topic that comes in IELTS. You should say what happened, क्या हुआ था, कोई एक्सीडेंट आपने देखा था. You saw मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि see का saw मतलब past tense वाला टॉपिक है, सारी चीजें आपको डिस्क्राइब past tense में ही करनी पड़ेगी. Your feelings, how it happened, and your feelings after the accident. तीनों तीन पॉइंट्स आपको पास्ट टेंस वाले हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दिस एंड आई वांट यू पीपल टू रीड दिस along with me. Nobody really likes accidents, but still they take place and affect our lives significantly. Affect our lives significantly when it is least expected. Today, I would like to talk about one such incident today. Yeah, voice break हो रहा है. Yeah, is it now coming clear, Himanshu? Yeah, is it now coming clear, everybody? Is my voice coming clear now? Yes or no, everybody? Okay, great. Okay, fine. Let me say once again. Speak once again. Nobody really likes accidents, but still they take place. किसी को accidents अच्छा नहीं लगता, but ये होते तो है and affect our lives significantly when it is least expected. Today, I would like to talk about one such accident which took place at one of the major and busiest intersections of my hometown. Now, these two lines are not about past tense because इसमें हमने इस्तेमाल किया है कि यहाँ पे past tense का इस्तेमाल नहीं है. Yeah, is my voice coming now? Is my voice coming now, everybody? Yeah, is my voice coming now? Let me, I'm putting my voice, mic together. Yeah, is it coming now? Yes or no? Okay. So I'll keep the voice, mic near to me. Okay, fine. So ये देखिए पहली जो दो line है, the first two lines. Okay, let me repeat. Nobody really likes accidents, but still they take place and affect our lives significantly when it is least expected. Today, I would like to talk about one such accident. Today, I would like to talk about one such accident which took place at one of the major and busiest intersections of my hometown. Is it not clear, students? Just a minute, just a minute. Let me see. What can I do for you? Just hold on. I'm going nearer to the router. Yeah, it should be clear now, I suppose. Is it clear now? नहीं मैंने तो अभी बोला ही नहीं है. Yeah, there is an internet issue. Yeah, is it now clear, everybody? Is it clear, my voice? Okay, great. Thank you so much. Thanks for, and sorry for the interruption. Okay, so ये जो पहली दो line है, this basically are, yeah, these first two lines are about present tense, जहां पे मैं describe करता हूं. So I would like to tell each and every one of you, whenever you are supposed to speak about a topic, one or two lines you can always speak in general. जैसे कि पहली लाइन आप देख सकते हो कि जनरल टॉपिक है, जनरल, nobody really likes accidents but still they take place. Now here I have not utilized any past tense right now, but now I am going to describe the accident. तो देखिए past tense का बहुत इस्तेमाल होगा. If I remember correctly, I was coming, which is this tense, ये जो है past continuous है. ज्यादातर अगर past tense का टॉपिक होता है उसमें दो टेंसेस का इस्तेमाल होता है, सिंपल पास्ट और past continuous. ये दो टेंसेस का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होता है when there is a topic on past tense. If I remember correctly, I was coming back from my office on a public bus on Friday late afternoon a couple of months ago. मैं चाहूंगा आप लोग इसको गौर से देखें और सुने. इसी मैं चाहूंगा सारे लोग इसी लेवल का बोलेंगे और बोलना चाहिए. The road was a bit more busy and congested than usual. रोड busy था और congested था. Perhaps because of the rush to return home quickly from work. The traffic of both small and big vehicles was flowing from all directions. Usually, this situation is not a concern on normal days.
ज्यादातर केसेस में ऐसे सिचुएशन जहां पे ट्रैफिक दोनों तरफ से फ्लो होता है वो कंसर्न वाली बात नहीं है. But unfortunately, on that fateful Friday afternoon, now over here, I would like to tell you what is the meaning of the word fateful. Can anyone explain me the meaning of the word fateful? Yes or no? What is the meaning of the word fateful? बताने की कस करेंगे. आई कैन आई कैन गूगलिंग मत कर देना. मैं आप मुझे आई कैन अनम्यूट एनीबडी इफ यू कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेटफुल. आप साथ में करेंगे. अनलकी. हाँ देखिए, फेटफुल का मतलब होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू स्टूडेंट्स. फेटफुल का मतलब होता है ऐसा कोई इवेंट, जो इवेंट इवेंट होता है लेकिन इवेंट के कारण कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसके बैड है. एन इवेंट लीडिंग टू बैड कॉन्सिक्वेंसेस इज व्हाट वी कॉल एज फेटफुल. आई रिपीट, ऑन दैट फेटफुल नाइट, फॉर एग्जांपल आप जा रहे थे और आपके बीच में किसी के साथ हाथापाई होगी आपकी, तो आप कह सकते हो ऑन दैट फेटफुल डे. किसी का एक्सीडेंट हो गया, देन यू कैन यूटिलाइज ऑन दैट फेटफुल डे. फेटफुल डे का मतलब होता है इवेंट, ऐसा डे जहां पे इवेंट होता है और इवेंट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लाता है, इसको हम कहेंगे फेटफुल डे. इज इट गेटिंग क्लियर? ओके. So fateful Friday afternoon, there was a sudden and unavoidable accident between a 12-wheel truck and a private car as the big truck was trying to overtake the car at a dangerous speed in order to avoid the red traffic signal. आप देख सकते हो दो टेंसेस का इस्तेमाल है. पहला, एक तो है सिंपल पास्ट टेंस और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस. वॉज ट्राइंग. दिस लेड, देखिए लेड, लेड अगर आपको पता नहीं है लीड का पास्ट लेड है तो आप इसको अच्छी तरह से बोल नहीं पाओगे. इज इट गेटिंग क्लियर? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड के पास्ट टेंसेस का महत्व समझिए. This led to a big accident between the two vehicles and the collision. Collision मतलब टकराव left one car passenger seriously injured. The accident happened so fast that I just stared. Stared मतलब देखता ही रह गया. Again past tense. At the accident site in shock and fear. With a numb. Numb मतलब सुन्न हो जाना. Feeling on my whole body for a while. Anyway, उसके बाद after witnessing the accident, I initially felt very shocked and scared. Then after recollecting myself, मैंने अपने आप को संभाला. Recollect करना मतलब अपने आप को संभालना. I felt a sense of real anger and rage. एंगर और रेज का मतलब होता है, एंगर का मतलब होता है गुस्सा और रेज का मतलब होता है आवेश. मुझे मेरे दिमाग में गुस्सा भी आया और आवेश भी आया. किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट द ट्रक ड्राइवर because of his senseless and totally irresponsible acts. I also felt that I needed to take up the issue to the road authority. मुझे ऐसा लगा कि ये इश्यू को रोड अथॉरिटी तक जाया जाए, so that they could take immediate steps. They could take immediate steps to nab the culprit. Nab मतलब पकड़ना. Culprit का मतलब होता है गुनहगार. In the greater interest of public safety. पब्लिक की भलाई के लिए मुझे ऐसा लगा कि रोड अथॉरिटी को इसको बताया जाए ताकि जो जिम्मेवार आदमी है, कल्प्रिट है, उसको पकड़ा जाए. इंपॉर्टेंट ये है, you can see over here that the utilization of past tense and past continuous. So I strongly believe that after this lecture I want you people to at least make a conscious effort to make sure that you don't commit mistakes on past tense. इसी के कारण what I am now going to do is I am going to give you a small exercise. मैं आपको दो small exercise. Yeah, is my voice clear now, Khushi? Yeah, is my voice clear? Okay, fine. Okay, great. Now I'm going to give you a small exercise to do. मैं चाहूंगा आप इसमें past tense का उपयोग कीजिए. There are 7 sentences. You need to utilize. आपने यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे verb दिए हैं, and I want you people to utilize the past tense. Your time starts now. 2 minutes only. आज ज्यादा लंबा लेक्चर चलने वाला है तो मैं चाहूंगा आप लोग बिल्कुल, खाना नहीं खाया है तो खाना साथ में लाके बैठिए. चलिए जल्दी से. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओनली 2 minutes. लेट अस सी हु गेट्स ऑल राइट.
And this is going to be followed by a small test which I'm going to take during the weekend. Yeah, is it done, everybody? Is it done, everybody? Very good. Let us check the answers now. Okay, 2 minutes. Okay, Shurbi. Do it. If you want some time, I can give you. Don't worry. Not an issue. Sure, sure. Take your time. शांति से कोई टेंशन नहीं है. Okay. Okay. Is it done, everybody? Okay. So shall we check the answers, students? Let us see how it is, how you have fared in your examination. Let us see how you have fared. Now, yeah, if you want time, I can give, but I believe that we can still go ahead with checking the answers. Okay, so let us check the answers and let me see. अगर आपने try नहीं किया है तो I can wait, but if you believe that you have tried enough, then we can go ahead with the answers. काफी topics लेने हैं. Now these are the answers. You need to check out. I want you people just go through it. एक बार check कर लीजिए कि answers and let me know how many of you got it correct. Let us see. शांति से चेक कीजिए. दूसरा जो है यहाँ पे past tense का इस्तेमाल नहीं है. So don't worry, it was observed. So if you have committed mistake over here thinking that you needed to utilize past tense, so that is fine. Secondly, एक ऐसा है जहाँ पे it was observed का इस्तेमाल है, but that's fine. If you have committed mistake in that, it is absolutely fine. Check out the rest of the fill in the blanks. And let me know how many of you got all right. 5 total 7 में से कितने correct पड़े मुझे बताओ. Very good, Vibhuti. Vibhuti has got all right. Pathan Noman has got all right. Very good. How many of you? Angel has got 6. Very good. 6, 6. Okay, many of you are getting 6 out of 7. Very nice. Very nice. Very good. Okay, great. Very nice. Even if you got all wrong, there is nothing to worry. It is absolutely fine. Don't worry about getting it wrong. It is absolutely fine.
थर्ड है हिटलर was not a brutal tyrant. ब्रूटल टायरेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रूटल टायरेंट? वो या ब्रूटल टायरेंट का मतलब होता है वो एक घातकी वो टायरेंट नहीं था. ही बिकेम वन. बिकम मतलब बिकम, वो बन गया, तो इसलिए हमने बिकम का बिकेम कर दिया. हिटलर ड्रीम का पास्ट टेंस है ड्रेम्ड ऑफ अ करियर एज एन आर्टिस्ट. उसने पहले ऐसा सोचा था कि आई एम गोइंग टू बिकम एन आर्टिस्ट. इज इट गेटिंग क्लियर? सो फोर्थ और सिक्स किसी को समझना है? हाँ. हिज फादर रिजेक्टेड द आइडिया बट आफ्टर, सॉरी, ये जो है फादर हैड, ये जो है ये पास्ट परफेक्ट है, तो आप इसकी भी चिंता कर मत कीजिए, इवन इफ यू कमिटेड मिस्टेक इन दिस. बट आफ्टर ही डाइड, डेड का डाइड हो जाएगा, इन 1903 हिटलर वुड ट्राई टू मेक हिज ड्रीम अ रियलिटी. फॉर डिकेड्स इमिग्रेशन, सिक्स वन, द फॉर डिकेड्स इमिग्रेशन had been changing. Again, I understand that ये past tense नहीं है, तो that's absolutely fine. लेकिन मुझे देखना था. So don't worry, if you have made mistakes in one, I mean second, fourth में और sixth में अगर थोड़ी mistake हुई है तो टेंशन वाली बात नहीं है. सिर्फ past tense का आप देखो ध्यान. अगर past tense सही है तो that is all I wanted. Clear? Okay. Now, the most important thing, I am going to take a test. There will be a test of this 5 topics during the weekend. और ये सारे topics जो है वो past tense के है. First is describe a crowded place you have been to, and you need to include all these 4 points when you speak. Describe a performance you enjoyed watching. Again, टॉपिक समझने वाली बात है. डिस्क्राइब ए परफॉर्मेंस यू एंजॉय वॉचिंग नहीं है. देखिए कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है. अगर इसी टॉपिक में एंजॉयड के बदले एंजॉय का इस्तेमाल किया है तो आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे टॉपिक इज एब्सोल्युटली अबाउट पास्ट टेंस. दैट मींस यू नीड टू बी यूटिलाइजिंग सिंपल पास्ट टेंस. डिस्क्राइब एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मैसेज यू रिसीव्ड. Describe a uniform you have worn, such as a school or company uniform. You should say. Describe a challenging thing you have done. You should say. ये पांचों पांच topics जो है, they are all on past tenses. I want you people to take a screenshot of these topics. इसका screenshot लेना है आपको, और इसकी एग्जाम फ्राइडे या सैटरडे को होगी. आपको इसी 5 टॉपिक्स में से पूछा जाएगा, एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज करेक्ट फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस. इज इट कंफर्टेबल फॉर यू पीपल? यस और नो? मेरा सिर्फ यही मतलब है कि आपका पास्ट टेंस स्ट्रांग हो जाए. सो दिस वीक यू नीड टू डेडिकेट दिस टू अ स्ट्रॉन्गर पास्ट टेंस, सो दैट यू कैन स्पीक प्रॉपरली और पास्ट टेंस में प्रॉब्लम ना हो. क्लियर? लेट मी नो व्हेन यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, सो दैट आपको पूरा बोलना है. यू नीड टू बी स्पीकिंग. अब देखना, एक चीज याद रखो, सेंटेंसेस के बारे में मत सोचो. आपने क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर. व्हाट यू नीड टू डू, जब आप एग्जाम होती है, फ्राइडे या सैटरडे को एग्जाम होगी इस 5 टॉपिक्स के बारे में, आपको ये ध्यान रखना है. व्हाट यू नीड टू डू इज दैट व्हेन यू स्पीक, उसके पहले एक मॉक टेस्ट अपनी खुद की ले लेना. और यू नीड टू चेक आउट हाउ मेनी सेकंड्स आर यू एबल टू स्पीक. आपको आपका जो आंसर है वो 1.5 से 2 मिनट तक चलना चाहिए. योर आंसर शुड लास्ट फॉर 1.5 to 2 minutes. ये ऐसे टॉपिक्स है जो आप, कोई भी आदमी बोल सकता है, सर मेरा इंग्लिश बहुत वीक है. अरे भैया आप प्रयत्न तो कीजिए. ऑल यू नीड टू डू इज मेक, यू नीड टू मेक एन ऑनेस्ट एफर्ट to make sure that you continuously speak for 1.5 to 2 minutes. Is it comfortable for everybody? On Friday and Saturday, I am going to take, or a faculty is going to take a mock test of these 5 topics, and you are supposed to speak on these topics for 1.5 to 2 minutes. Comfortable with this idea? Yes or no? क्लियर? ये आपके भले के लिए है. पास्ट टेंस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसी के लिए मैं दे रहा हूं आपको. अंडरस्टूड एवरीबडी? श्योर? वेरी गुड. थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स. एवरीबडी इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव. हम करेंगे सर. हाँ ठीक है, 1.5 से 2 मिनट तक ही आपको बोलना है. क्लियर? ओके ग्रेट. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट टेंस टॉपिक्स. ये पास्ट टेंस के बारे में था. आई होप दिस वाज क्लियर. आपको एक दूसरा काम करना है. टुमारो आई एम गोइंग टू गिव यू अ पीडीएफ ऑफ इरेगुलर वर्ब्स. आप ये पूरा मेमोराइज कर दोगे, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई टेक्निक नहीं है. आई एम गोइंग टू गिव यू पीडीएफ ऑफ मोस्ट irregular verbs utilized in IELTS. Okay, so you can expect the PDF to come down on your mobile. Okay, now we are going to talk about past continuous. Yeah, we are going to talk about past continuous. और उसके बाद I am going to take advantages outweigh disadvantages वाला essay, और उसका मैं format देने वाला हूँ. I am just going to, this past continuous is only going to last for 5-6 minutes, and then we are going to rush on to the
IELTS ऐसे पार्ट। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कैसे होता है? पहले तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? इट इंडिकेट्स एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यूअसली चल रहा था, तब जाके हम पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे करोगे? आई, ही, शी और इट के साथ वॉस का इस्तेमाल करोगे, और यू, वी और दे के साथ यू आर गोइंग टू टेक, यू आर गोइंग टू यू नो utilize were. So I, he, she, it is going to be followed by was, and you, we and they is going to be followed by were. So very very important. अब ज्यादातर past tense का इस्तेमाल कब होता है? जब पास्ट में दो एक्शन होती है। एक याद रखिए, जब पास्ट में दो एक्शन होती है तो पहली एक्शन और दूसरी एक्शन पास्ट में, पहली एक्शन के लिए आप इस्तेमाल करोगे पास्ट कंटिन्यूस जो चल रही थी, और जो बाद में होती है सेकंड एक्शन जो होती है, तब आप इस्तेमाल करोगे सिंपल पास्ट। आई रिपीट, पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कहां पे होता है? अनफिनिश्ड ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट, और साथ में एक फिनिश्ड एक्शन है। आई वॉज हैविंग लंच विथ माई फ्रेंड्स व्हेन द डोरबेल रैंग। मुझे बताने का कस करेंगे पहली एक्शन कौन सी हुई थी? विच वॉज विच एक्शन टुक प्लेस फर्स्ट, लंच या डोरबेल वाली? यस, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी। विच एक्शन टुक प्लेस फर्स्ट? हाँ, लंच वाली पहले हुई एग्जैक्टली exactly, और डोरबेल बाद में हुआ। देखो डोरबेल किसी ने लिख दिया, निराली ने डोरबेल लिख दिया है। लंच पहले होता है आपका, लंच टुक प्लेस फर्स्ट। तो याद रखना है, व्हेन देयर आर टू एक्शंस दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, पहली एक्शन के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करोगे और दूसरी के लिए सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करोगे। इज इट गेटिंग क्लियर? ओके, लेट मी गिव अनदर एग्जांपल। इट वॉज रेनिंग व्हेन प्रिया लेफ्ट फॉर होम। तो रेनिंग तो पहले हुआ था, तो उसके लिए हमने पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया। एंड प्रिया लेफ्ट, प्रिया ने बाद में लेफ्ट किया, वो सेकंड एक्शन हुई, तो उसके लिए हमने सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया। द पावर वेंट आउट वाइल द चिल्ड्रन वेर स्टडिंग। तो पावर वेंट आउट, उसके लिए पहले चला गया था, पहली कौन सी एक्शन थी? चिल्ड्रन वेर स्टडिंग, बच्चे तो पढ़ रहे थे, तो वो पहली एक्शन हुई। इज इट गेटिंग क्लियर? एंड दूसरी एक्शन बाद में पावर वेंट आउट हुआ, तो दूसरी एक्शन के लिए हमने सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया। अगेन, while we were waiting at the bus stop we saw a car accident। तो while we were waiting वो पहला एक्शन, उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस। we saw a car वो बाद में हुआ, उसके लिए सिंपल पास्ट। ओके, इज इट गेटिंग क्लियर? वेरी वेरी सिंपल। is am are was where होगा पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, when there are two actions that took place in the past, for showing the first action we utilize past continuous, and the second action के लिए सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, 1 मिनट में हो जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, 1 मिनट ओनली। आपने इसका पास्ट टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना है। मैं पहला एग्जांपल करता हूं, जेम्स वॉज टॉकिंग टू पीटर। वैसे आपको 2 से लेके 8 करना है, जल्दी से। यूज सिंपल पास्ट टेंस। Done, everybody? Sure? Okay, fine. Let's check the answers. Let me see how many of you got right. All right. James was talking to Peter. Sue was reading a storybook. Rudy was erasing the chalkboard. David was doing his math exercise. Jane was Peter was showing Joey's new watch. Jane was drawing a horse in her notebook. Ahmed was looking for his pencil, and some children were making a lot of noise. So I hope many of you must have got all correct. That's very very good. Okay, जितने हो सके उतने करेक्ट देख रहा हूं मैं कि काफी बच्चों के they are all correct. Very good. Okay, thank you so much, students. Now
We are going to move on to IELTS, a difficult topic, and I want you people not to go. I understand that 45, 46 minutes have passed. So please, just a minute. It should not take more time. Okay, so we are going to take advantages outweigh disadvantages वाला टॉपिक. टाइप्स हमने पहले लास्ट टाइम किया था. मैं एक बार वापस देना कहना चाहूंगा. 5 मिनट लगेंगे बेसिक्स के लिए. You know that there are 5 types of essay topics in IELTS. First is opinion, second is discuss both views and give your opinion, third is problem solution, fourth is advantages and disadvantages, and fifth is double questions essay. Now last time we took advantages and disadvantages, and I told you कि advantages disadvantages में भी 3 type के essay है. There are 3 types of essays. Yeah, Rupal, can you give me a call tomorrow in case if you got any doubts? Don't worry. Okay. So there are 3 types of advantages and disadvantages essay in IELTS. आज मैं कराने वाला हूँ वो जो सबसे difficult type of essay है IELTS के advantages disadvantages में. That's what we are going to do today, and I am also going to give you a format of that. पहले टाइप का ऐसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में देयर आर 3 टाइप्स. एक तो ऐसा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही लिखने हैं. आप देख सकते हो टॉपिक इज ऑलरेडी गिवन, सो यू कैन गो थ्रू इट. You can also go through the video tomorrow because I am not going to spend time on discussing this type. दूसरे एक टाइप का टॉपिक होता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में. वो ये है कि ऐसा कहा जाता है एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि आपको वेटेज दिया जाता है कि डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवे द डिसएडवांटेजेस. टॉपिक ये था, सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इट इज बेटर फॉर चिल्ड्रन टू बिगिन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज एट प्राइमरी स्कूल्स रादर देन सेकेंडरी स्कूल. तो आपको ये कहा जाता है कि भाई एडवांटेजेस क्या पल्ला क्या डिसएडवांटेजेस से भारी है कि नहीं है. अगर आपको लगता है कि डिसएडवांटेजेस का पल्ला भारी है तो आप उस हिसाब से भी लिख सकते हो. और तीसरी टाइप का जो ऐसे है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में, वो आपको ऐसा कहा जाता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो लिखना ही है लेकिन आपको अपना ओपिनियन भी देना है. सो फॉर ऑल दोज हु आर डूइंग द एसे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सिंपल है. आईएलटीएस में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का जो ऐसे है उसमें 3 टाइप्स है. पहले टाइप में सिर्फ और सिर्फ यू नीड टू राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. दूसरे टाइप में आपको ये पूछा जाता है कि क्या एडवांटेजेस का पल्ला डिसएडवांटेजेस से भारी है या वाइस वर्सा. In the third topic, you are asked to write about advantages and disadvantages, and you are also required to give your own opinion. Now, there is also a topic of this type. Can you tell me what type of topic is this? Out of these 3 types, which type of topic is this? Can you tell me? क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें हैं. देखिए, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड. तो ये पहले टाइप का ऐसे हुआ. और आपको ये भी पूछा गया है कि भाई डू यू थिंक दैट बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म आउटवे इट्स ड्रॉबैक्स. तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर क्या करना है. व्हाट आर वी सपोज टू डू. आर वी सपोज टू राइट पहला वाला टॉपिक है उसके बारे में लिखना है जिसमें सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है. तो आपने यहाँ पे इतना याद रखना है, अगर आउटवे वर्ड आ जाता है तो आपने यही मान के चलना है ये आउटवे वाला ही ऐसे है. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. इज इट गेटिंग क्लियर. आपने यही समझना है कि ये आउटवे वाला ऐसे का टॉपिक है और आप इसी फॉर्मेट जो आउटवे वाला जो फॉर्मेट मैं आपको देने वाला हूं आज, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूटिलाइज इन योर essay. Okay, now we are going to come down to this topic. Let me go ahead now. ये टॉपिक हम करेंगे आज. स्मॉल बिजनेसेस आर डिसअपियरिंग एंड बीइंग रिप्लेस्ड बाय लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज. डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवे द डिसएडवांटेजेस. यू कैन सी राइट नाउ के बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस है वो अब डिसअपियर मतलब वेनिश हो रहे, डिसअपियर हो रहे मतलब जा रहे हैं. एंड बीइंग रिप्लेस बाय लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज. और उनको रिप्लेस कौन कर रहा है. बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज उसको रिप्लेस कर रही है. डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवे द डिसएडवांटेजेस. क्या एडवांटेजेस, कौन सा एडवांटेजेस. अब ये समझना पड़ेगा कौन सा एडवांटेज. जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती है ये चीज के जो एडवांटेजेस है क्या उसका पल्ला भारी है डिसएडवांटेजेस से. तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, अगर आपको लगता है कि एडवांटेजेस ज्यादा है, मतलब अगर बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आती है और छोटी कंपनियों को डिसअपियर करवाती है और उसका पल्ला मतलब एडवांटेजेस ज्यादा है, तो यू विल हैव टू राइट
कि भाई उसके एडवांटेजेस ज्यादा होने चाहिए इन कंपैरिजन टू डिसएडवांटेजेस। तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट, पहले आपको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा व्हाट यू आर गोइंग टू डू और व्हाट पॉइंट्स और हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव गॉट ऑन ईच साइड्स। Okay, now this is, I hope the topic is clear to you. First of all, everybody, is the topic clear to you? Because this is very, very important. Yes, is the topic clear? Very good. Okay, so this is the topic. Now I am going to give you, sir क्या करेंगे? Now this is the format that you are going to utilize. ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं चाहूंगा आप ये फॉर्मेट को स्क्रीनशॉट में ले ले, और मैंने पहले भी बताया था कि यू आर नॉट गोइंग टू शेयर दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर्मेट टू एनीबडी हु इज नोन टू यू। ये फॉर्मेट हम लोग बड़ी मेहनत से बनाते हैं, ये फॉर्मेट आपको बाहर नहीं मिलेगा। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू पीपल टू टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर्मेट, और जहां पे जब भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे आता है तब आप इस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 में फायदा फर्क नहीं है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के तीनों टाइप के ऐसे में ज्यादा बॉडी पैराग्राफ में फर्क नहीं है। The only difference is going to be in introduction and conclusion. I repeat, the major difference is going to be only in introduction and conclusion. आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो इंट्रोडक्शन को? इट इज ऑफ्टन आर्ग्यूड, या तो फिर इट इज जनरली एक्नोलेज, ये माना जाता है, माना गया है, ये समझ रहे हैं हम लोग, या तो फिर इट इज ऑफन थॉट बाय सम पीपल दैट, बाद में ऐसे के अनुरूप यहाँ पे आप ब्लैंक भरोगे। लेकिन ये सेकंड सेंटेंस जो है, थीसिस स्टेटमेंट जिसको कहेंगे हम, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ ऐसे। आप ऐसा करोगे, while there are some advantages, या तो फिर while there is an advantage of this trend like। अब आप देखो, मैंने यहाँ पे स्लैश इसलिए किया है, अगर आप एक एडवांटेज से ज्यादा लिखते हो तो आप ये ऐसे स्टार्ट करें, while there are some advantages। लेकिन अगर एक ही एडवांटेज है तो आप लिख सकते हो while there is an advantage of this trend। Are you getting what I am trying to say? Because अगर आपके पास एक ही एडवांटेज है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते while there are some advantages like, क्योंकि आपके पास तो एक ही एडवांटेज है। Are you getting what I am trying to say? दोनों में फर्क है। All of you understood what I am trying to say? पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट में टाइम जा रहा है आप लोगों का। Try to understand what I am trying to explain you. ओके, अगर एक ही एडवांटेज है तो आप लिखोगे इज एन एडवांटेज, लेकिन अगर एक से ज्यादा है, देव इज आस्किंग मी, देखो मेरी बात सुनो, देव इज आस्किंग मी दैट कैन यू एक्सप्लेन मी अगेन, लेट मी एक्सप्लेन यू। व्हाइल देयर आर सम एडवांटेजेस, अगर आपको लगता है कि एडवांटेजेस एक से ज्यादा है तो आप ये इसका इस्तेमाल कीजिए, वेयर देयर आर सम एडवांटेजेस। लेकिन अगर एक ही एडवांटेज है तो जाहिर है, देखिए मैंने यहाँ पे सिंगुलर का इस्तेमाल किया है, while there is an advantage of this trend like, बाद में कॉमा, आई वुड आर्ग्यू दैट इट्स डिसएडवांटेजेस आर मोर सिग्निफिकेंट। जैसे कि ये टॉपिक जो था उसमें ऐसा था कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस छोटी छोटी कंपनियों को डिसअपियर कर रही है, उनको खत्म कर रही है। क्या ये जो ट्रेंड है जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को डिसअपियर करवा रही है, ये ट्रेंड का आपको लगता है कि इसके एडवांटेजेस का पल्ला भारी है डिसएडवांटेजेस से? मैं यहाँ पे ये लिखने वाला हूं, नहीं, एडवांटेज शायद एक आध या दो है लेकिन डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। यही चीज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। बॉडी पैराग्राफ 1 में मैं एडवांटेज लिखूंगा, वन मेजर वन एविडेंट बेनिफिट, या तो फिर द मेन बेनिफिट, या तो फिर वन मेजर एडवांटेज, इसमें से कोई भी एक चीज लेनी है आपको, यू डोंट नीड टू राइट ऑल। फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेजेस का इस्तेमाल कीजिए। ये फ्रेजेस का कैसे इस्तेमाल होता है आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड्स, बट राइट नाउ अंडरस्टैंड दिस। बाद में दूसरा पैराग्राफ, वन पॉसिबल ड्रॉबैक ऑन द अदर हैंड, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्टली, फॉर एग्जाम्पल, ये फ्रेजेस आप मेमोराइज कर लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात जो है वो है कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट। इन कंक्लूजन, डिस्पाइट एन ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ दिस ट्रेंड लाइक, भले ही एक एडवांटेज है, दे आर कंसिडरेबली आउटवेड एंड आउटनंबर्ड। इसमें जो डिसएडवांटेजेस है उसका पल्ला न सिर्फ ज्यादा है बल्कि वो नंबर में भी ज्यादा है। पल्ला तो भारी है ही उसका, लेकिन वो नंबर में भी ज्यादा है। और यहां पे मैं डिस्क्राइब करूंगा कि वो दो डिसएडवांटेज कौन से है। इफ any one of you is not getting clear with this concept, he or she doesn't need to worry.
what I want is that just take a screenshot, and now I am going to utilize this format for the essay. Have you taken the screenshot before I move on to the next slide, everybody? ये बहुत important है. Yes or no? Do you want me to move to the second slide? Yes or no? Have you taken the screenshot? Okay, fine. अब आगे बढ़ते हैं. इसको बिल्कुल जाना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट मी मूव टू द एसे. टॉपिक ये था आपका, स्मॉल बिजनेसेस आर डिसअपियरिंग and being replaced by large multinational companies. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? मैं बिल्कुल शांति से जा रहा हूं, आपको पूरा दिमाग में आ जाएगा, डोंट वरी एट ऑल. अब देखो, ये जो बोल्ड वर्ड्स है इज बेसिकली द यूटिलाइजेशन ऑफ माय फॉर्मेट. जो मैंने पहले आगे की स्क्रीन में जो फॉर्मेट दिखाया था उसी का इस्तेमाल है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पहली लाइन आई एम गोइंग टू पैराफ्रेज दिस. मैं इसको पैराफ्रेज करूंगा. स्मॉल बिजनेसेस आर डिसअपियरिंग एंड बीइंग रिप्लेस्ड बाय लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज. ये जो पहली लाइन है उसी चीज को मैं अलग सेंटेंस में लिखूंगा. देखिए मैंने यही किया है यहाँ पे. इट इज जनरली एक्नॉलेज दैट large multinational organizations are forcing small companies to vanish. Vanish का मतलब disappear and taking over their position in the market. Can you see that this is the paraphrase of this big sentence? Yes or no? देखो शांति से देखो. Can you see that I have not changed the meaning of the sentence? I have just changed the words. Yes or no? Absolutely everybody understood? शांति से देखो. क्लियर हो गया? एक भी चीज ज्यादा नहीं की है, कम नहीं की है, बस जस्ट मैंने पैराफ्रेज किया है. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, वेरी गुड. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. जब आउटवे वाला ऐसे आता है तब दो ही सेंटेंस का इस्तेमाल करना है. देखो मैंने नीचे लिखा है, यू आर ओनली गोइंग टू यूटिलाइज टू लाइंस. while there is an advantage of this trend like increased local employment. भले इसमें एक एडवांटेज है कि ये लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है. क्या बढ़ाता है? लोकल एम्प्लॉयमेंट को क्या बढ़ाता है? कौन सी चीज बढ़ाती है? Can you tell me which thing is increasing local employment? बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो आती है उससे ये एक फायदा है कि वो लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है. इज इट गेटिंग क्लियर? ओके. नाउ आई वुड आर्ग्यू दैट इट्स डिसएडवांटेजेस आर मोर सिग्निफिकेंट. मैं ये आर्ग्यू करता हूं कि मल्टीनेशनल कॉर्प इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसका पल्ला भारी है. तो देखिए मैंने यहाँ पे कह दिया, व्हाट आई हैव डन इज इन माय थीसिस स्टेटमेंट आई हैव क्लियरली मेंशन्ड. एग्जामिनर को पता चल रहा है कि मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि भले इसका एक एडवांटेज है कि इसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें डिसएडवांटेजेस का जो पल्ला है वो भारी है. इज इट गेटिंग क्लियर? आई विल बी टेकिंग अ लेक्चर ऑन पैराफ्रेजिंग एज वेल, सो डोंट वरी. ओके, या. नाउ बॉडी पैराफ 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. बॉडी पैराफ 1, डिसएडवांटेजेस आपको दिखाने हैं तो दिखा सकते हो. देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा है, मधु ने पूछा है कि सर मैं डिसएडवांटेजेस दिखाऊं. आप नहीं दिखाओगे तो चलेगा, बट बिकॉज आई एम गोइंग टू डू दैट इन कंक्लूजन. कौन से डिसएडवांटेजेस आप दिखा भी सकते हो मधु, देयर इज नथिंग टू वरी. ओके, नाउ ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ एंड आई वांट यू पीपल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं कि ये जो बड़ी कंपनीज आती है उससे फायदा क्या है. अब मैंने फायदा तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि इससे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगा, वही चीज मैं दिखा रहा हूं. वन मेजर एडवांटेज ऑफ हैविंग मल्टीनेशनल इन अ पर्टिकुलर कंट्री इज द लोकल एम्प्लॉयमेंट विच द कंपनीज ऑफ्टन प्रोवाइड. एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जिस कंट्री में होती है वहां पे उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है. द रीजन इज व्हेन अ कंपनी और अ प्लांट इज बीइंग बिल्ड, दे नीड नॉट ओनली मटेरियल रिसोर्स बट मैन रिसोर्स एज वेल. जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां आती है तो ये सिर्फ मटेरियल नहीं मांगती, आदमियों को भी मांगती है. दस many local people will be hired and potentially it will reduce the unemployment rate in a country. इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा. फॉर एग्जाम्पल स्टारबक्स, आपने कॉफी शायद सुना होगा नाम. अ मल्टीनेशनल कॉफी शॉप कंपनी हैविंग अ लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन ऑस्ट्रेलिया. जब स्टारबक ऑस्ट्रेलिया में आई थी तो उसने काफी लोकल सिटीजन्स को हायर किया. आर हायरिंग मेनी लोकल सिटीजन्स and this results in decreasing rate of unemployment in that area from 11% to 8%. तो इस पैराग्राफ में मैंने ये किया है कि इसका एडवांटेज ये है, जब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आती है तो उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है. एग्जाम्पल मैंने दिया स्टारबक्स कंपनी का जो ऑस्ट्रेलिया में आई,
उसने एम्प्लॉयमेंट दिया और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 11% था उससे कम होके 8% हो गया. You can see I have made, I have written 4 lines over here. Any doubts or queries, students? Have you understood? Everybody, very very important. Don't go away. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बच्चे बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं, ये आउटवे वाला टॉपिक आता है तब. क्लियर? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि भाई ये सबसे बड़ा टॉपिक है, ये जो है ये सबसे बड़ा पैराग्राफ आने वाला है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, बिकॉज यहाँ पे मैं ऐसा लिखने वाला हूँ बॉडी पैराग्राफ 2 में कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा है उसके. तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऑन द अदर हैंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस also can become the source of environment pollution. ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां आती है वो बड़ा सोर्स बन जाती है एनवायरमेंट पॉल्यूशन का. किस लिए? दिस इज बिकॉज दे प्रोड्यूस मेनी प्रोडक्ट्स एट वंस. एक ही साथ बहुत बड़ा प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रोड्यूसिंग लॉट्स ऑफ वेस्ट. वेस्ट भी बहुत होता है, विच इज डेंजरस फॉर एनवायरमेंट. इन इंडिया there are so many raw material companies for pharmaceutical usage which are being criticized for being responsible for ecological pollution and destruction of many rivers. आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, ये लैंग्वेज पे भार मत दीजिए, आप कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट को समझिए. मैंने पहले ये लिखा कि भाई ये बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो आती है वो सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन का बन जाती है और बहुत वेस्ट प्रोड्यूस करती है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है. और हमने एग्जांपल दिया कि काफी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो यहाँ पे आई, इकोलॉजिकल पॉल्यूशन किया और काफी रिवर्स का डिस्ट्रक्शन किया. ये आवाज आ रही है मेरी? मुझे यहाँ पे लिख रही. यस, आर यू एबल टू लिसन टू मी एवरीबडी? या इज माई वॉइस कमिंग क्लियर? ओके, ग्रेट, नाइस. चलिए नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काफी बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे 2 एडवांटेजेस लिखने, मतलब अगर मैं बोलता हूं कि डिसएडवांटेजेस का पल्ला भारी है तो शुड आई गिव 2 डिसएडवांटेजेस? 2 डिसएडवांटेज दे सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है. लेकिन अगर आपके पास एक ही डिसएडवांटेज है आप उस पर भी पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो. लेकिन काफी कबार ऐसा होता है कि टू राइट अबाउट 4 to 5 लाइन्स, टू राइट 70, 80, 90 वर्ड्स ऑन वन डिसएडवांटेज मे बी एन इश्यू फॉर यू. तो ऐसे केस में यू कैन राइट 2 डिसएडवांटेजेस जैसे कि मैंने यहां पे किया है, बाय यूटिलाइजिंग द वर्ड सेकंडली दिस मल्टीनेशनल कंपनीज विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर लोकली मेड प्रोडक्ट्स टू सस्टेन इन द मार्केट. दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो लोकली अवेलेबल प्रोडक्ट्स है वो बचेंगे नहीं, उसके सामने बड़ा कंपटीशन आएगा. एज दे विल एंटाइज द पीपल थ्रू बॉम्बार्डमेंट ऑफ देयर एडवर्टाइजमेंट्स. एंटाइज का मतलब आपको लुभाना. वापस कहना चाहूंगा, secondly this multinational companies will make it difficult. I repeat, this multinational companies will make it difficult. वो डिफिकल्ट कर देगी किन के लिए? जो लोकली मेड प्रोडक्ट्स है वो बचेंगे नहीं, सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, वो बच ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट्स का बॉम्बार्डमेंट करती है. इतना एडवर्टाइज करती है, इतना एडवर्टाइजमेंट करती है कि आप वो लोग एंटाइज मतलब अट्रैक्ट हो जाते हो कि उनकी प्रोडक्ट्स को खरीदो. आपको शायद याद होगा, आप तो शायद लकड़े के प्रोडक्ट टॉयज से नहीं खेले थे, लेकिन अगर आप अपने मम्मी पापा को पूछोगे तो वो लोग के जब वो छोटे थे तो लकड़े के टॉयज आते थे, आपको याद होगा, देयर वर वुडन टॉयज. अब तो ये दिखते भी नहीं है. आपको आपको दिखते लकड़े के टॉयज, दे आर नॉट सीन एनीवेयर, isn't it? Yes, is my screen visible now, पूनम? ओके, लोकली मेड वुडन टॉयज, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा. लोकली मेड वुडन टॉयज फॉर एग्जांपल विच वेर वेरी पॉपुलर इनिशियली, समझने वाली बात है, which were very popular initially are no more in existence. जो लकड़े के जो प्रोडक्ट्स थे जो पहले बहुत पॉपुलर थे अब एग्जिस्टेंस में नहीं है nowadays because of modern toys which are constantly marketed by these global companies. यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 5 लाइन का इस्तेमाल किया है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे तो मैं 5 ही कहूंगा. एक डिसएडवांटेज के लिए 2 या 3 लाइन, दूसरे डिसएडवांटेज के लिए 2 या 3 लाइन. तो इससे ये पता चल जाता है कि आप ऐसा दिखाना चाहते हो कि डिसएडवांटेजेस का पल्ला भारी है, न डिसएडवांटेजेस का पल्ला भारी है, डिसएडवांटेजेस के नंबर्स भी ज्यादा है. इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी? यस और नो? शांति से देखिए. मैंने 2 तो भी चलता है मधु, इट इज फाइन, यू कैन राइट ओनली वन डिसएडवांटेज. एवरीबडी, इज इट क्लियर? आई डोंट वांट एनीवन टू गो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार वापस देख लो उसको.
bombarded मतलब फेंकना. Clear? Okay, now I am going to write the conclusion. मैं conclusion लिखने वाला हूं. कंक्लूजन लिखने वाला हूं. अब देखिए इसको गौर से. कंक्लूजन में मैंने पहले भी बताया था कि जब आप कंक्लूजन लिखते हो तो इंट्रोडक्शन आपके नजर के सामने रखिए. व्हेन यू आर राइटिंग एन एसे यू कैन सी एन इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ यू. ये इंट्रोडक्शन था आपका जो हमने लिखा था. अब देखो कंक्लूजन मैंने लिखा है. इन कंक्लूजन, डिस्पाइट एन ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ दिस ट्रेंड, भले ही एक ऑब्वियस एडवांटेज लग रहा है इस ट्रेंड का कि भाई बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आएगी, लाइक इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर नेटिव पीपल, ये बढ़ाएगी एम्प्लॉयमेंट लोकल लोगों के लिए. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है स्टूडेंट्स. ये जब एग्जाम में जाओगे तो ये सेंटेंस आप भूल जाओगे कैसे लिखना है. ये सेंटेंस को याद कर लो कि कैसे लिखना है. दे आर कंसिडरेबली आउटवेड एंड आउटनंबर्ड बाय डिसएडवांटेजेस लाइक, पहला डिसएडवांटेज आपको याद होगा कौन सा था, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंपनीज एंड द सर्वाइवल थ्रेट इट पोजेस फॉर लोकल प्रोडक्ट्स. और दूसरा डिसएडवांटेज कौन सा था कि वो लोकल प्रोडक्ट्स को जीने ही नहीं देगा, उससे सर्वाइव ही नहीं करने देगा. आप देख सकते हो ये पूरा कंक्लूजन आई हैव रिटन इट इन ओनली वन लाइन. चेक इट आउट. आई हैव रिटन दिस एंटायर कंक्लूजन इन ओनली वन लाइन. एंड लेट मी टेल यू तकरीबन 35-40 वर्ड्स तो है तकरीबन. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स नाउ स्टूडेंट्स? यस और नो? क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मैं चाहूंगा जब भी आउटवे वाला ऐसे हो आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो. और ये पूरा जो ऐसे है ये आप इसको ये वापस फॉर्मेट आ गया. दिस इज अ फॉर्मेट दैट इज वंस अगेन कम. ये फॉर्मेट वापस आप स्क्रीनशॉट ले लो. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर्मेट फर्स्ट ऑफ ऑल. पहले ये फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मैं ऐसे देता हूं आपको. या दिख रही है आपको स्क्रीन अब? Can you take this? Have you taken the screenshot of this format? Yes or no? Check it out. Okay. Now I'm going to give you the essay. ये पूरा जो essay है ये है. You can take the screenshot of this essay. Let me know when you are done. अब जब ऐसे लिखते हो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के, अब आपको क्या करना है कि अगर ज्यादा एडवांटेजेस है तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हो. व्हेन यू हैव गॉट मोर एडवांटेजेस यू कैन टेक इट दैट वे. यू कैन राइट, ये यहाँ पे पूरा चेंज हो जाएगा, बात तो वही रहेगी. डन एवरीबॉडी? यस और नो? ओके. सो दैट एंड्स अवर लेक्चर. इसका पूरा रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगा. सो इन केस इफ यू वांट टू रिवाइज इट यू कैन डू दैट. सो डोंट वरी. आपको इसको रिवाइज भी करना है तो आप कर सकते हो. क्लियर? थैंक यू. रूपल, कैन यू गिव मी अ कॉल टुमारो? इज इट फाइन? या डोंट वरी हिमांशु, इट विल कम डाउन. धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा. डोंट वरी. नॉट एन इश्यू. एवरीथिंग विल बी क्लियर. डोंट वरी हिमांशु. हम लोग आप हर रोज लेक्चर भरोगे. आई होप यू एंजॉय द लेक्चर स्टूडेंट्स. आई होप यू एंजॉय द लेक्चर एवरीबॉडी. ओके. Yeah. Thank you, students. Thank you so much. Bye. Good night. Yeah, we'll take a lecture on complex sentence. Don't worry. Clear? Good night.